हेलो एवरीवन, नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू रॉकेट रफ्तार। एंड आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, विच या सब ऐसा कहते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स टू लर्न, बट ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ इट you will find it very interesting because it is about our nervous system. Like since I was a kid, I always wondered how things worked out. Like it worked out, okay? How I did what I did, if I'm studying, if I'm like even recording this lecture, if I'm seeing anything, if I'm like analyzing anything, how am I actually doing? What makes me do what I want to do? So, there are multiple answers to this question. There is a multitude of answers to this question. But today we are going to learn generation and conduction of nerve impulse, how information is passed in our body like from one place to another. Okay, so let's start. We'll learn with the raftar of rocket. Okay, so let's start. So a neuron, a nerve cell, okay, is in a polarized state. First thing that we have to learn is that a neuron is in polarized state. Now what do you mean by polarized, right? Like मैंने जब पहली बार सुना था polarized word, I was in wonder too, like what the hell do you mean by polarized? See, this is what I mean by polarized. This is our exolemma. Now what is exolemma? Like if we have a cell, we have its membrane, right? The same way our nerve cell also has this membrane, and which we call exolemma. Okay, so this is our exolemma and this is our exoplasm. What is exoplasm? The cytoplasm inside the neuron is called inside the axon. This is our axon. The information passes throughout the axon. We know that the information is gained by the dendrite and then it passes through the axon. So we are actually going to learn कि axon में से कैसे pass होती है, जो information जो आई है, जो impulse आया है, वो कैसे pass होता है, right? So first of all, पहले हमें ये जानना होगा कि सब किसको क्या कहते हैं, right? So this is our exolemma and the cytoplasm inside it is called the exoplasm, right? Now remember, जो exolemma होती है वो inside से negatively charged होती है और outside से positively charged होती है. This is its resting stage. Now हम रेस्ट कर रहे होते हैं, राइट? लाइक इफ आई एम, दिस इज माई रेस्टिंग स्टेज. सो इफ आई एम रेस्टिंग, व्हाट मेक्स मी रेस्टिंग? मुझे क्या रेस्टिंग बनाता है? लाइक आई एम नॉट मूविंग माई लेग्स, नॉट मूविंग माई हैंड्स, नॉट मूविंग एनीथिंग. सो दैट्स माई रेस्टिंग स्टेट. ओके, सो this is a neuron's resting state. It is always positively charged outside and negatively charged inside. It always, this is neuron's resting state. Now कुछ भी करने के लिए, रेस्टिंग स्टेट करने के लिए कंडीशंस भी होती है कि वो रेस्टिंग स्टेट में रहता कैसे. लाइक एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं रेस्टिंग स्टेट में अगर हूँ मैं, तो व्हाट आर द कंडीशंस? आई एम नॉट मूविंग एनीथिंग, लाइक आई एम नॉट मूविंग माई लेग्स, नॉट मूविंग माई हैंड्स, नॉट मूविंग माई हेड. सो दैट मेक्स मी इन अ रेस्टिंग स्टेट. ओके, सो व्हाट मेक्स अ न्यूरॉन इन इट रेस्टिंग? व्हाट वो रेस्टिंग स्टेट में रहता कैसे है? वी आर गोइंग टू लर्न दैट फर्स्ट. सो एज आई टोल्ड यू, याद रखना हमेशा अंदर की साइड क्या होता है? ICF, और बाहर की साइड क्या होता है? ECF. दिस आर टर्म्स दैट यू हैव टू गोइंग टू रिमेंबर. द थिंग इज इस कंसेप्ट में थोड़ा NCERT से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि NCERT में आधी आधी अधूरी लाइन्स लिखी है, राइट? एंड इफ़ यू वांट टू कंसेप्ट को क्लियर करना है, इफ़ यू वांट टू इफ़ यू वांट कि NCERT की जो लाइन टू लाइन है वो एकदम हमें क्लियर हो जाए, हमें समझ में आ जाए, और हमें उसको रट्टाफिकेशन ना करना पड़े. तो फॉर दैट we have to go a little over the NCERT. Okay, so as I told you, this is our exolemma, this is our exoplasm. The fluid inside the exoplasm is our ICF, which is intracellular fluid, and ICF, and the outside is ECF, that's extracellular fluid, intracellular fluid, and extracellular fluid. Okay, so this is what it is. Why do we call that a neuron is in polarized? हम न्यूरॉन को polarized में क्यों कहते हैं? Because it is positively charged outside, negatively charged inside, positively charged outside, negatively charged inside. इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा बोलते हैं, अंदर को होता है उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं.
और अंदर होता है उसको ICF बोलते हैं, जो इनसाइड फ्लूइड होता है इसको इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बोलते हैं, बाहर होता है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड बोलते हैं, उसको एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड बोलते हैं, राइट. दैट्स इट. नाउ another thing that you will have to remember is अंदर. now see, पूरे की पूरी नर्वस सिस्टम में हीरो दो लोग हैं, सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस आर लाइक द मेन प्लेयर्स इन द रूम, लाइक मेन कोई ड्रामा होता है तो उसमें मेल लीड फीमेल लीड जैसा होता है, तो दे आर द लीड्स एक्चुअली. ओके, दे आर द लीड्स ऑफ दिस ड्रामा. सो सोडियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस. ओके, सो सोडियम प्लस कहाँ पे हाई कंसनट्रेशन में होता है? जब बाहर सोडियम प्लस हाई कंसनट्रेशन में होता है और अंदर पोटेशियम प्लस हाई कंसनट्रेशन में होता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. याद रखना कि सोडियम होता है वो कहाँ हाई होता है और पोटेशियम कहाँ हाई होता है, राइट. एंड रिमेंबर कि जो एक्सोलेमा होती है वो सोडियम प्लस के लिए ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होती है. व्हाट इज़ परमिएबल, इम्परमिएबल, राइट. सो लाइक सोडियम प्लस के लिए ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होती है और पोटेशियम प्लस के लिए परमिएबल होती है. तो पोटेशियम प्लस जब भी चाहे तब बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है, बट सोडियम प्लस कैन नॉट डू दैट. एंड एज पर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सोडियम प्लस ऊपर ऑफकोर्स हाई है और अंदर पोटेशियम प्लस हाई है. नाउ दिस इज आवर रेस्टिंग स्टेट. रेस्टिंग स्टेट के लिए रेस्टिंग स्टेट के लिए एज आई टोल्ड यू देयर आर सम कंडीशंस कि वो रेस्टिंग स्टेट में रहता कैसे है. सो व्हाट आर दोस कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन इज in the exoplasm one more thing is present, that is negatively charged proteins. What? These are also the one of the main reasons why it is negatively charged inside. So negatively charged protein जो है, right, it is one of the most important reason, negatively charged proteins. Second reason is our main thing, that is sodium potassium active pump. Like आपने पहले सुना ही होगा sodium potassium active pump help करते हैं nervous system में, but कैसे help करते हैं? There is sodium potassium active pump present here. Now what does it do? Before that, let me tell you there is one more thing present. It is sodium leak channels and potassium leak channels. Now when I say leak channels, okay, it's LEAK, leak channels. अगर मैं बोल रही हूँ leak channels है तो of course कुछ leak हो रहा होगा. Like if कोई bottle में hole है, right, तो उसमें से leak होता है पानी जैसे, like bottle भरी हुई है पानी की, and if there is a hole in there, then we say that the water is leaking from the bottle. The same way there is sodium leak channel and potassium leak channel. So if I say it's sodium leak channel, then of course it would mean कि sodium leak हो रहा है, right? So sodium leak कहाँ से कहाँ होगा? Of course sodium यहाँ पे in the extracellular fluid high concentration है sodium की, तो of course वहाँ से अंदर leak हो रहा होगा, और potassium अंदर high है, तो इंट्रासेल्युलर ICF में आया है तो of course वो अंदर से बाहर leak हो रहा होगा, right? So this is one of the thing, and we said that there are negatively charged proteins on the inside. And the third and most important thing is our sodium potassium active pump. Now what does it do? Sodium potassium active pump, it is active pump, that means ke of course against concentration gradient work कर रहा होगा, right? If we say active pump है, passive pump है, like active pump है तो of course वो concentration gradient के against एक काम कर रहा होगा. Same way here, sodium plus कहाँ पे आए है? यहाँ पे आए है, right? तो हम अंदर से बाहर सोडियम भेजें, अगर ऐसा नहीं है कि सोडियम यहाँ पे नहीं है, सोडियम है यहाँ पे अवेलेबल, राइट, बिकॉज लीक चैनल से ऑलरेडी तो सोडियम लीक तो होते ही होंगे अंदर, राइट. तो ऐसा नहीं है यहाँ पे पोटेशियम प्लस हाई है बट सोडियम प्लस लो भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है. दिस इज वन ऑफ द मिसकंसेप्ट, ओके, कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सोडियम है ही नहीं और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पोटेशियम है ही नहीं, वहाँ पे है बट इन लो अमाउंट है. ज़्यादा कौन है? सोडियम प्लस बाहर ECF में ज़्यादा है और पोटेशियम प्लस ICF में ज़्यादा है, राइट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप. सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप वर्क कैसे करता है? एज आई टोल्ड दैट एक्टिव पंप है तो ऑफकोर्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क करता होगा. तो सोडियम प्लस यहाँ पे हाई है, राइट. सो ये अंदर ICF से ECF जब सोडियम जाएगा तो ऑफकोर्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेम वे, लाइक यहाँ से ECF से ICF में अगर पोटेशियम आता होगा, if it's coming from ECF to ICF, then of course it will be against potassium, it will be against the concentration gradient. That is what we call sodium potassium active pump. Now what is the important thing that you have to remember is it's
always wait. Three sodium outwards, 2 potassium inwards. 3 sodium outwards, 2 potassium inwards. 3 sodium outwards, 2 potassium inwards. 3 sodium outwards, 2 potassium inwards. तो 3 सोडियम हम बाहर भेज रहे हैं, 2 पोटेशियम्स को अंदर ला रहे हैं. 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर. 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर. तो अब इमेजिन करो कि हम 3 पोटेशियम बाहर भेज रहे हैं और 2 पोटेशियम को अंदर ला रहे हैं. तो ऑफकोर्स यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा. इन द ECF पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा. और ऑन द ICF लाइक पॉजिटिव चार्ज घटता जाएगा. ऐसा नहीं है कि नेगेटिव होता जा रहा है, बट पॉजिटिव चार्ज घटता जा रहा है. तो कंपेरेटिवली यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एंड प्लस वी हैव द नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स ओवर हियर, राइट? And that's what it makes negatively charged on the inside and positively charged on the outside, and that is what it makes it in a polarized state. And if it's in a polarized state, then we can excite it, and if we can excite it, then we can send information from one place to another place, right? So this is the resting stage. Resting stage के लिए first we have to know that the plasma membrane is called exolemma. अंदर जो cytoplasm होता है उसको exoplasm बोलते हैं. अंदर होता है ICF, बाहर होता है ECF, and ECF is positively charged while ICF is negatively charged. Why? Because it is what is it called? It is called the polarized state. And why? Because of 3 main reasons. The first reason is we have negatively charged proteins on the inside, and we have one of the thing is that we have potassium high inside, sodium plus high outside in the ECF. And why is it polarized? Because of the main 3 reasons. First is we have negatively charged proteins inside, and then there is sodium potassium active pump which throws 3 sodium outside, 2 potassium inside, 3 sodium outwards, 2 potassium inwards, which comparatively makes the ECF more positively charged than the ICF, and which makes it negatively charged and the outside positively charged. This is what you called polarized state, and this is what you called a resting stage. Now resting state, if we're talking about the resting state, and there is polarization, then of course we have to talk about what will be the voltage of it, right? As you have learned, there is electric field and there is voltage and all. So if it is polarized, then of course there will be a specific voltage for it. So this is what you have to remember, that the resting potential for a neuron is minus 70 millivolt. What is it? It is minus 70 millivolt. This is important now. Like, it's not given in NCERT, but it is important. It is important to remember that it is minus 70 millivolt, because it will help to engage all the concepts together. Okay, so this is our resting stage. Now after the resting stage, like मैं अपने resting state में हूँ, right? And some कुछ external stimuli आ रही है, right? So I will react to it. Okay? तो अगर एक्सटर्नल इम्पल्स आ रहा है तो हमें हमारा जो न्यूरॉन है वो रेस्टिंग स्टेट से भी बाहर तो आएगा कि नहीं? रेस्टिंग स्टेज जो है उसको उसमें से बाहर आके वो इम्पल्स जो आया उससे रिएक्ट तो करेगा. नाउ वी हैव टू लर्न कि वो इम्पल्स जनरेशन कैसे होगा. लाइक सपोज कि मैं ऐसे खड़ी हूँ, राइट? और कोई आके मुझे कुछ बोले जा रहा है एंड देन वी हैव लाइक एवरीवन हैज़ देयर ओन लिमिट सुनने की. लाइक आई हैव माई लिमिट ऑफ समथिंग के वो 3 सेंटेंस कुछ खराब बोले एंड देन माई लिमिट विल रीच एंड फिर मैं बोलूँगी, राइट? बट 2 सेंटेंस बोले तब तक मैं कुछ नहीं बोल रही. सो 3 सेंटेंस के बाद जनरेशन हो रहा है मेरा स्टिम्युलाई का. 3 सेंटेंस वो बोल रहा है और फिर मैं उसको जवाब दे रही हूँ. दैट मीन्स कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर द लिमिट, माई स्टिम्युलस इज जनरेटेड. सो जनरेशन अलग बात है और कंडक्शन अलग बात है. एंड देन आई एम स्पीकिंग और उसको भी जवाब दे जा रही हूँ. एंड देन आई एम गिविंग स्टिम्युलाई कंटिन्यूसली. दैट इज कंडक्शन. सो जनरेशन डिफरेंट थिंग है, कंडक्शन डिफरेंट थिंग है. तो फर्स्ट वी हैव टू नो रेस्टिंग स्टेट. रेस्टिंग स्टेट में क्या हो रहा है, लाइक इफ आई एम रेस्टिंग देन व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली. तो रेस्टिंग स्टेट में क्या हो रहा है वो जानना होता है. एंड देन जनरेशन कैसे होता है, वो इम्पल्स को जनरेट कैसे करता है वो जानना होता है. एंड देन द लास्ट थिंग इज दैट हाउ इट कंडक्ट्स
through the entire body, through the entire neuron, and then to all the neuron, जो उससे जुड़े हुए, right? So we are going to learn now how it generates. Okay, so first of all I'll be doing the same. Let's try drawing a neuron again. Okay, so this is our neuron. Okay, don't mind my drawing, I know it's bad, but yeah, whatever, enough to make you understand, right? So yeah, so this is our neuron. Okay, and this is our axon and this is our neuron. Okay, so what do we have here? We have sodium ligand channels. What? We have sodium ligand channels. Now, if this is dendrites, you like आपको पता ही होगा कि dendrites से ही जो information आती है वो आती है, right? Whatever information comes, it comes from the dendrites. Okay, तो यहाँ पे जो सेल बॉडी होती है वहाँ पे सोडियम लिगेंड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम लिगेंड चैनल्स. सो सी यहाँ पे अगर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो देयर विल बी लॉट ऑफ चैनल्स, सो यू हैव टू रिमेंबर दोज नेम्स ऑफ दोज चैनल्स. लाइक पहले हमारे सोडियम पोटेशियम लीक चैनल्स थे, राइट? नाउ दिस आर लिगेंड चैनल्स. नाउ व्हाट आर दोज लिगेंड चैनल्स? वी वेरी वेल नो कि ECF होता है और ICF होता है. ICF में क्या? ECF में सोडियम प्लस हाई होता है, राइट? सोडियम प्लस ECF में हाई होता है. सो नॉर्मली इसका कितना पोटेंशियल होगा? -70 मिलीवोल्ट. नॉर्मली इतना ही पोटेंशियल होगा क्योंकि ऑफ कोर्स ये रेस्टिंग पोटेंशियल है. नाउ इफ इंफॉर्मेशन आई, ओके, थिंक कि इंफॉर्मेशन आई तो क्या हुआ? एक्साइटेटरी, दो टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी. इनहिबिटरी स्टिमुलस इम्पल्स होता है और एक्साइटेटरी इम्पल्स होता है. बट वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. जस्ट इतना समझो कि कोई इन्फॉर्मेशन आई, कोई इम्पल्स आया, ओके? होगा क्या? ये सोडियम लिगेंड चैनल्स हैं वो खुल जाएंगे. अब सोडियम लिगेंड चैनल्स खुल जाएंगी तो क्या होगा? ऑफ कोर्स ये सोडियम पोटेशियम एक्टिव पम्प के सिवाय और दूसरा कोई एक्टिव पम्प होता नहीं है एज पर 11th NCERT. तो सोडियम प्लस लिगेंड चैनल्स खुल जाएगी. अब सोडियम प्लस लिगेंड चैनल्स खुलेगी तो होगा क्या? बाहर सोडियम ज़्यादा है तो बाहर से अंदर आ जाएगा. लाइक द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होगा, उसमें सोडियम का इन्फ्लक्स होगा. क्या होगा? इन्फ्लक्स होगा. इफ्लक्स नहीं, इन्फ्लक्स. इट्स INFLUX, इन्फ्लक्स होगा. ओके, तो क्या होगा? सोडियम का इन्फ्लक्स होगा. तो सोडियम जो है वो वेट ओके तो क्या होगा? सोडियम का इन्फ्लक्स होगा और सोडियम जो है वो अंदर आएगा अंटिल जब तक इफ -55 मिलीवोल्ट नहीं हो जाता तब तक. सो इसका मतलब क्या हो? -55 मिलीवोल्ट है क्या? वो है थ्रेशहोल्ड वोल्टेज. What is it? It is threshold voltage. Now, जैसा मैंने आपको कहा कि if someone is talking to you and कुछ ऐसा लड़ना वड़ना हो गया, ओके, या एक जो सामने वाला इंसान है वो आपको बोले जा रहा है जब पर मैं अभी शांति बनाए रखी हूँ, मैंने ऐसा कुछ कुछ भी ऐसा बोला नहीं है, राइट? कुछ भी ऐसा मैं अग्रेसिव नहीं हुई हूँ अभी तक. बट देयर विल बी अ लिमिट कि वो बोले जा रहा है बट देयर विल बी अ लिमिट. तो लिमिट होती है वो क्या, उसको वो क्या बोलते हैं? थ्रेशहोल्ड. देयर विल बी अ लिमिट के मैं कब तक नहीं बोल सकती, कब तक मैं ना बोलूँ, फिर वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी, फिर मैं बोलना चालू कर दूँगी. सो दैट इज़ व्हाट यू कॉल थ्रेशहोल्ड. थ्रेशहोल्ड एक्चुअली लिमिट होती है. ओके, सो -70 मिलीवोल्ट से -55 मिलीवोल्ट. लाइक इफ दैट अ पर्सन इज टॉकिंग टू यू एंड लाइक थोड़ा बोला, लाइक मेरी लिमिट 3 सेंटेंस है, तो 3 सेंटेंस के बाद मेरे खिलाफ मैं कुछ नहीं सुन सकती, ओके? पर वो 2 सेंटेंस बोल के चला गया तो ऑफकोर्स मैं तो कुछ रिएक्ट नहीं करूँगी बाद में. पर अगर वो 3 सेंटेंस बोल रहा है और उससे ज़्यादा बोल रहा है तो ऑफकोर्स मैं रिएक्ट करेंगे. तो सेम वे अगर -70 मिलीवोल्ट है, ओके, तो ऐसा स्टिमुलस आया जैसे -70 से -55 के बीच में हो गया, सपोज के -60 मिलीवोल्ट हो गया, तो आगे नहीं बढ़ेगा. इट शुड बी इट लाइक उसको -55 होना ही पड़ेगा. अगर -55 हुआ तो ही आगे इन्फॉर्मेशन जाएगी, बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, राइट? सो -55 इज द थ्रेशहोल्ड वोल्टेज. सो -70 मिलीवोल्ट से -55 कैसे क्यों हुआ? बिकॉज
बिकॉज इम्पल्स आया तो क्या हुआ, जो सोडियम प्लस थे उसका इन्फ्लक्स हो गया इंटरसेलुलर फ्लूइड में, आईसीएफ में इन्फ्लक्स हो गया, उससे क्या हो गया -70 मिलीवोल्ट जो रेस्टिंग स्टेट था, रेस्टिंग स्टेट से क्या होगा -55 मिलीवोल्ट, एंड -55 मिलीवोल्ट अगर हो गया तो जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे जाएगी, बाकी आगे नहीं जाएगी. दिस इज generation, this is what you call generation of nerve, this is what this is what you call generation of nerve impulse. Okay, this is what you call अब ठीक हुआ ना, generation of nerve impulse. Now इसके बाद हम बात करेंगे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. जनरेशन हो गया, अभी आगे बढ़ा, -55 हो गया, चलो समझो कि हो गया -55, तो -55 होगा तो आगे कैसे बढ़ा, लाइक इट हैज़ टू रीच ओवर हियर एंड देन यहाँ पे और डेंड्राइट्स हो गया और यहाँ से यहाँ जाएगा एंड देन आगे जाता जाएगा, राइट. सो आगे जाएगा कैसे, दैट्स व्हाट वी हैव टू स्टडी नाउ. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्शन ओवर हियर. Wait. ओके, सो ये अपना रेस्टिंग स्टेज है, राइट. -70 से क्या हो गया, इम्पल्स आया तो -70 से क्या हो गया, -55 मिलीवोल्ट हो गया. क्या हो गया, -55 मिलीवोल्ट हो गया. और -55 मिलीवोल्ट जब आया तो क्या होगा, -55 मिलीवोल्ट जब आया तो क्या होगा, तो होगा देर आर 2 मोर चैनल्स प्रेजेंट, दैट इज पहले अपनी सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, सॉरी मेरी टंग स्लिप हो रही है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स. सो पहले वहाँ पे कौन था, सोडियम गेटेड चैनल्स, उसके पहले कौन था, सोडियम लीक चैनल. सो दिस आर वोल्टेज गेटेड चैनल्स. नाउ व्हाट विल दे डू, अब -55 हो गया बराबर, तो -55 हो गया तो क्या होगा, -55 हो गया तो ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से उसको पता चलेगा, ओ मेरा टाइम आ गया, लाइक यू नो सब अपना टाइम आएगा, जैसा वो सॉन्ग है वैसे ही, लाइक वो बोलेगा मेरा टाइम आ गया, मेरा टाइम आ गया. और क्या करेगा वो करेगा सोडियम प्लस इन्फ्लक्स. सोडियम प्लस ऑलरेडी इन्फ्लक्स हुए थे, सोडियम गेटेड चैनल, सोडियम लिगेंड चैनल से, सॉरी माय बैड, सोडियम लिगेंड चैनल से ऑलरेडी सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ था, -70 से -55 हुआ था. अभी क्या होगा, अभी -55 हो गया तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स को पता चलेगा, ओ अभी मेरा टाइम आ गया, नाउ आई हैव टू वर्क ऑन, एंड वो क्या करेगा, वो खोल देगा, लाइक वो खुल जाएगा, सोडियम बीजीसी है वो खुल जाएगा और सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, हैवी इन्फ्लक्स होगा, सोडियम का हैवी इन्फ्लक्स होगा, तो -55 से क्या हो जाएगा, +30 मिलीवोल्ट, एंड +30 मिलीवोल्ट हो जाएगा, +30 मिलीवोल्ट हो जाएगा तो बाहर माइनस हो जाएगा और अंदर प्लस हो जाएगा. दिस इज व्हाट यू कॉल, ये पोलराइज्ड स्टेट था. ओके, सो उसका उल्टा हो गया तो हम क्या बोलेंगे, डीपोलराइज्ड. इट इज डीपोलराइज्ड नाउ. ओके, सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड डीपोलराइजेशन. दिस इज व्हाट यू कॉल डीपोलराइजेशन. जब -55 से +30 हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम, डीपोलराइजेशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन. अभी -55 से +30 हुआ, जैसे -70 से -55 हुआ तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को पता चल गया, सोडियम बीजीसी को पता चल गया कि अभी लाइक आई हैव टू ओपन अप एंड सोडियम को इन्फ्लक्स करना पड़ेगा ताकि डीपोलराइजेशन हो. ओके, वैसे ही +30 हो गया तो देर इज़ वन मोर जैसे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से सोडियम बीजीसी है, वैसे ही पोटेशियम बीजीसी है, राइट. सो देर इज पोटेशियम बीजीसी. तो पोटेशियम बीजीसी क्या करेंगे, अब पोटेशियम बीजीसी खुल जाएगा कब, +30 पे. -55 पे कौन खुलता है, -55 पे कौन खुलता है, सोडियम बीजीसी खुलता है. और +30 पे कौन खुलता है, और +30 पे सोडियम बीजीसी बंद हो जाते हैं और खुलता है अपना पोटेशियम बीजीसी. तो पोटेशियम बीजीसी खुल जाएंगे तो वो क्या करेगा, करेगा अभी
सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ तो पोटेशियम का क्या क्या होगा, इफ्लक्स होगा। क्या होगा, इफ्लक्स, मतलब सोडियम पोटेशियम जो है वो अंदर से बाहर जाने लगेंगे, ECF में से ICF में जाने लगेंगे। एंड दैट विल कॉज व्हाट, दैट विल कॉज के +30 से फिर से वो नेगेटिवली चार्ज हो जाए अंदर की साइड और बाहर पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, ये हो जाएगा। अभी +30 हुआ, हमने सीखा कि -70 रेस्टिंग, -70 से -55 हुआ, -55 थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, -55 अगर हुआ तब सोडियम VGC को पता चल गया कि अभी हमारा टाइम आ गया, हमारा काम जो है वो करना पड़ेगा, तो वो खुल जाएगा और सोडियम का इन्फ्लक्स होगा और इतना इन्फ्लक्स होगा कि वो +30 पहुंच जाएगा। +30 पहुंच जाएगा तो सोडियम को पता चलेगा अब मुझे बंद हो जाना चाहिए और पोटेशियम को पता चलेगा कि अब मुझे खुल जाना चाहिए, वो खुल जाएगा और पोटेशियम का इफ्लक्स होगा। पोटेशियम का इफ्लक्स होगा कब तक होगा, जब तक वो नॉर्मल ना हो जाए तब तक। बट क्या होगा, वो बंद नहीं होगा। अपना पोटेशियम है ना, पोटेशियम VGC है ना, वो अपने जैसा है। अपने जैसा मतलब क्या, हम सपोज के फ़ोन लेके बैठे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं। अभी इंस्टाग्राम देख रहे हैं तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि लाइक 30 मिनट्स I'll watch it for 30 minutes and then I'll drop it down। हम ऐसा सोच रहे हैं कि 30 मिनट तक देखूंगा, फिर नहीं देखूंगा, राइट, फिर बंद कर दूंगा ऐसे। बट ऐसा कभी होता नहीं है। वी वॉच इट फॉर 35 मिनट्स, 40-45, इवन 1 आवर और मोर देन दैट। कब टाइम चला जाता है पता ही नहीं चलता। वैसे ही अपना पोटेशियम VGC है वो बंद होना भूल जाता है और +30 से क्या हो जाता है, माइनस सीधा 90 मिलीवोल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, -90 मिलीवोल्ट हो जाता है। एंड देन फिर -90 मिलीवोल्ट पे पोटेशियम जो है अपना पोटेशियम VGC है, -90 मिलीवोल्ट पे पोटेशियम VGC है वो क्लोज हो जाता है। और सोडियम VGC तो ऑलरेडी क्लोज हो गया था +30 मिलीवोल्ट पे। वैसे ही -90 मिलीवोल्ट पे सोडियम पोटेशियम VGC खत्म नहीं, बंद हो जाता है। वो बंद होता पोटेशियम VGC बंद हो जाता है। एंड फिर -90 से -70 पर वापस आ जाता है। एंड दिस, जैसे इसको मैंने डीपोलराइजेशन बोला, +30 से -90 हुआ, उसको मैंने +30 से पहले -70 होगा, +30 से -70 होगा, उसको हम बोलेंगे रीपोलराइजेशन। और -70 से फिर -90 होगा, उसको बोलेंगे हम हाइपरपोलराइजेशन। लाइक +30 से -70 तो होगा ही ऑफकोर्स, फिर वो बंद नहीं होगा, ऐसा है। सो लेट मी डू इट अनदर टाइम। सो पहले कितना था, -55 थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड पे क्या हुआ, -55 पे क्या हुआ, सोडियम VGC ओपन हो गया। फिर क्या हुआ, -55 से +30 हुआ, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डीपोलराइजेशन। यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम VGC क्लोज हो गया और पोटेशियम VGC ओपन हो गया, राइट। अभी +30 से -70 होगा, वापस -70 से -90 होगा। +30 से -70 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रीपोलराइजेशन, क्योंकि फिर से अंदर क्या हो गया, फिर से अंदर माइनस हो गया और ऊपर प्लस हो गया। डीपोलराइजेशन में क्या हुआ था, डीपोलराइजेशन में क्या हुआ था कि अंदर प्लस हो गया था और बाहर माइनस हो गया था, उल्टा हो गया था। तो उसका फिर से हम जो जैसा स्टेट में था वैसा कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स वी आर रीपोलराइजिंग इट, तो उसको क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन। -70 से -90 होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, हाइपर पोलराइजेशन, राइट। इसमें कुछ भी पोलराइज स्टेट है वो उल्टा नहीं हो जाता, कुछ नहीं होता, जस्ट थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव चार्ज अंदर हो जाता। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन। ओके, दिस इज एज सिंपल एज दैट। इतना ही याद रखना, दूसरा कुछ याद नहीं रखना, इतना ही याद रखना, दूसरा कुछ याद नहीं रखना। अगर लाइक ये कंसेप्ट पढ़ के तुम लोग NCERT पढ़ोगे तो आप लोगों को लगेगा ओ माय गॉड, NCERT ने कितना अधकचरा ज्ञान दिया है, कितना आधा अधूरा लिखा है। ओके, सो दिस इज कंडक्शन। अभी साइट A से साइट B कैसे जाते हैं, अभी ये सपोज ये ऐसे है, राइट। सपोज कि ये साइट A है, साइट B है या C है, ये पूरा एक न्यूरॉन है। ओके, सपोज कि एक घर है, राइट। घर में टाइल्स है,
राइट तो ऐसे एक रो में 5 टाइल्स, राइट तो मैं फर्स्ट टाइल में हूँ, एंड देन मैं सेकंड टाइल में हूँ, एंड देन मैं थर्ड टाइल में हूँ, तो साइड ए पे हूँ, साइड बी पे हूँ, साइड सी पे हूँ। वी जस्ट डिवाइड, ऐसा कुछ नहीं है बट वी जस्ट डिवाइडेड, तो हम लाइक अच्छी तरीके से समझ सके, वी जस्ट डिवाइडेड इट इन ए साइड, बी साइड एंड सी साइड, ताकि हम अच्छी तरीके से समझ सके। तो पहले सपोज कि ए साइड पे आ रहा है, एंड देन ए साइड से बी साइड पे जा रहा है, एंड देन बी साइड से सी साइड पे इम्पल्स जा रहा है, एंड फाइनली वो एक्सन टर्मिनल थ्रू निकल जा रहा है, एंड देन नेक्स्ट डेंड्राइट तक जा रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ एक्चुअली वर्क्स। सो हमने सीखा कि नॉर्मली सपोज कि साइड ए पे हम देख रहे हैं, तो साइड ए पे रीपोलराइज के पहले क्या होता है, डीपोलराइज कैसे होता है, डीपोलराइज से रीपोलराइज कैसे होता है, रीपोलराइज से हाइपर पोलराइज्ड कैसे होता है। अभी आगे कैसे जाता है वो सीखना है, राइट। तो वी वॉन्ट वेस्ट आवर टाइम, विल सी नेक्स्ट कैसे जाता है। सपोज वेट, लेट मी डू इट गुड। ओके, सो अभी सपोज कि ये साइड ए है, ये साइड बी है, एंड ये साइड सी है। ओके, एंड क्या हुआ, -55 मिलीवोल्ट जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, राइट, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, -55 मिलीवोल्ट है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, वो आया। यहाँ पे सोडियम VGC खुल गए, सोडियम VGC खुल गए, सोडियम VGC खुल गए, तो सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ। यू नो यू हैव टू लाइक ऐसे बोलते जाना पड़ता है, जैसे मैं बोल रही हूँ अभी। सो यू हैव टू लाइक रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, लाइक बोलते बोलते रिवाइज करना है, तो अच्छी तरीके से याद रहेगा। ओके, because this is one of the most, of course it is one of the most complicated topic unless you don't try to understand it, उसको समझने की ट्राई करो। ओके, सो साइड ए पे क्या हुआ, क्या है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस हो गया। ये कौन सा स्टेट है, ये अपना डीपोलराइज्ड स्टेट है। ओके, ये क्या हो गया, डीपोलराइजेशन ऑलरेडी, सोडियम VGC खुल गए, सोडियम VGC खुल गया, उसका इन्फ्लक्स हो गया, इन्फ्लक्स हो गया, अंदर +30 मिलीवोल्ट हो गया, और ये क्या हो गया, डीपोलराइज्ड हो गया। बट यहाँ पे तो अभी भी क्या है, वो नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में है। अभी क्या होगा, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा क्या, सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया, सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे सोडियम आ गए। ओके, लाइक देर आर सो मेनी सोडियम्स ओवर हियर, तो यहाँ पे बहुत सारे सोडियम आ गए, तो क्या करेंगे, लाइक यहाँ पे सोडियम है ही नहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट नल है, और यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो ऑफकोर्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के मुताबिक क्या होगा, सोडियम सब यहाँ जाने की ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। सो सोडियम क्या करेंगे, यहाँ पे जाने की ट्राई करेंगे, तो सोडियम यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी -70 मिलीवॉट है, तो -70 मिलीवॉट का क्या हो जाएगा, -55 मिलीवॉट। एंड यू गाइज वेरी वेल नो कि -55 मिलीवॉट पे क्या होता है। यहाँ पे ऑलरेडी रेस्टिंग स्टेज था, तो -70 था, अभी -70 से सोडियम बहुत सारे आ गए। ओके, यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे नहीं है, तो ऑफकोर्स अब लाइक अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, राइट। ये क्या करेंगे, यहाँ से सोडियम है वो यहाँ से यहाँ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाना चाहेगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज सब जा रहा है, तो -70 से -55 हो गया। एंड यू गाइज नो व्हाट -55 मीन्स, इट्स मैजिक नंबर गाइज। सो -55 से क्या होगा, -55 से फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड यहाँ पे ज़्यादा प्लस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो करंट ख़त्म करने के लिए ऐसे होगा, दिस इज़ लाइक सर्किट ख़त्म होता है, राइट। यहाँ पे अगर जा रहा है करंट, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा। ओके, सो सर्किट ख़त्म ऐसे हो रहा है, राइट। तो ए से बी जा रहा है, सर्किट बोल रहे हो मैं, सर्किट, रिमेंबर सर्किट ख़त्म करने के लिए यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा। ओके, सो ए साइड से बी साइड क्या हो रहा है, -70 से -55 हो गया। ओके 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 ओके, देखो यहाँ प्लस था, ज़्यादा था, यहाँ पे नहीं था, तो माइनस यहाँ से जो सोडियम थे वो यहाँ पे गए, तो -70 से -55 हो गया। -55 से हमें पता है क्या होगा, सोडियम VGC यहाँ पे खुलेंगे, सोडियम VGC यहाँ पे खुलेंगे, और ये जो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है वो यहाँ पे आने की ट्राई करेगा। ओके, तो यहाँ पे सोडियम VGC खुलेंगे, सोडियम VGC खुलेंगे, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, इन्फ्लक्स होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, -55 से +30 होगा, +30 से -70 होगा, -70 से -90 होगा, तो पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। तो -55 से -30 होगा डीपोलराइजेशन। ओके, यहाँ पे डीपोलराइजेशन जब होता होगा तब यहाँ पे क्या होगा, रीपोलराइजेशन होगा। यहाँ पे फिर से यहाँ पे बाहर प्लस आ जाएगा और अंदर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे जब दिस इज अ लाइन कि बी साइड पे जब डीपोलराइजेशन हो रहा है तब ए साइड पे रीपोलराइजेशन हो रहा है,
डू यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग कि बी साइड पे सेम थिंग सी साइड पे होगी. लेट्स फिर से करते हैं, चलो. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से करते हैं. सी साइड है, बी साइड है. सी साइड नॉर्मल साइड है, अभी कुछ नहीं है वहाँ पे. और सपोज कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी ये डीपोलराइज हो गई है ऑलरेडी. तो क्या होगा, जो यहाँ पे ऑलरेडी -70 है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज थोड़ा ज़्यादा हो गया है सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से, थोड़ा ज़्यादा सोडियम आ गया है. तो वो सोडियम यहाँ जाने की ट्राई करेगी, यहाँ जाने की ट्राई करेगी, तो -70 से -55 हो जाएगा. -55 हो जाएगा तो ऑफकोर्स -55 हो जाएगा तो सोडियम बीजीसी खुलेंगे, सोडियम बीजीसी खुलेंगे तो इन्फ्लक्स होगा सोडियम बीजीसी का, और सोडियम इन्फ्लक्स होगा तो फिर वो यहाँ पे क्या हो रहा है, -55 से +30 हो जाएगा. और +30 होगा तो वी नो दैट वी कॉल इट डीपोलराइजेशन. यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रहा है, तब यहाँ पे क्या होगा, रीपोलराइजेशन. यहाँ पे पोटेशियम बीजीसी खुल रहा होगा और पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा होगा, एंड इफ्लक्स हो रहा होगा तो ऑफकोर्स +30 से फिर से -70 आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रीपोलराइजेशन. तो इफ कंसेक्यूटिव साइड से, तो जो आगे वाली साइड है वहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रहा है, तो जो पीछे वाली साइड है उस पर क्या हो रहा होगा, रीपोलराइजेशन हो रहा होगा. दिस इज हाउ impulse is conducted throughout the axon of the neuron and throughout our body. This is very important. Like, you know, ये समझने के लिए it's like people say it's too complicated, too difficult, because इसके NCERT में पूरा कुछ दिया नहीं है कि सोडियम VGC कुछ है, कि सोडियम गेटेड चैनल्स ऐसा कुछ है, कि पोटेशियम VGC कुछ है, उसका इन्फ्लक्स दिया है, बट ऐसा कुछ चैनल्स वैनल्स नहीं दिया, आधे आधे सेंटेंस लिख दिया NCERT, एंड दैट NCERT ने, एंड दैट्स वाई इट becomes one of the most complicated and complex topic to learn, because लाइक आधा अधूरा बोल रही हो तो आपको समझ में नहीं आने वाला ना मैं क्या बोल रही हूँ. सो लाइक थोड़ा बाहर जाना पड़ता है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है कि -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल है, -55 मिलीवोल्ट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, -55 मिलीवोल्ट आता है तो सोडियम VGC खुलता है, उसका इन्फ्लक्स होता है तो +30 मिलीवोल्ट तक अंदर पोटेंशियल बन जाता है, +30 मिलीवोल्ट पोटेंशियल बन जाता है, तो वी कॉल इट डीपोलराइजेशन. इतना होता है तो पोटेशियम VGC खुलता है, पोटेशियम VGC खुलता है तो सोडियम पोटेशियम का इफ्लक्स होता है तो +30 से -70 मिलीवोल्ट वापस आ जाता है, विच वी कॉल रिपोलराइजेशन. एंड इफ रिपोलराइजेशन अकर्स एंड लाइक सो पोटेशियम VGC को पता नहीं चलता कि हमें बंद हो जाना चाहिए, जैसे हमें पता नहीं चलता कि हमें अभी इंस्टाग्राम यूज़ करना बंद करना चाहिए, वैसे ही पोटेशियम VGC को पता नहीं चलता और वो खुला ही रहता है जब तक -90 मिलीवोल्ट नहीं हो जाता, एंड -90 मिलीवोल्ट से फिर वो रेस्टिंग पोटेंशियल में -70 मिलीवोल्ट वापस आ जाता है. एंड इफ that is happening at site A, then the consecutive site, that is site B, वहाँ पे क्या हो रहा होगा, वहाँ पे जो अंदर if depolarization is happening on site A, तो क्या हो रहा होगा कि जो अंदर जो प्लस जो ज़्यादा है वो साइड B पे आ जाएगा फ्रॉम द इनवर्ड्स, एंड आउटवर्ड्स ऐसे जो आउटवर्ड्स B से A करंट जाएगा जो सर्किट खत्म करेगा, राइट. सर्किट खत्म तो करना पड़ेगा ऑफकोर्स, वन साइड सर्किट तो कभी होता नहीं है. सो वैसे सर्किट खत्म करेगा, एंड देन व्हेन -70 से बी साइड पे -55 आ जाएगा, वी कॉल इट ऑफकोर्स थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच हो जाएगा, तो वहाँ पे डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा, तो साइड ए पे रीपोलराइजेशन होता हुआ होगा. दैट्स इट, दैट्स ऑल. इतना ही लिखा है NCERT वालों ने. लाइक इफ़ यू गो एंड रीड इट नाउ इट विल बी वेरी क्लियर. और वो याद रखना है कि सोडियम के लिए ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है मेम्ब्रेन, और पोटेशियम के लिए वेरी मच परमिएबल है. ओके, एंड देन वन एंड लास्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज, you guys know right what is myelinated and non myelinated. माइलिनेटेड वो न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, और नॉन माइलिनेटेड वो होते हैं जिसपे एक्सॉन के ऊपर माइलिनेटेड शीथ प्रेजेंट नहीं होती है. सो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं जो मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, CNS में प्रेजेंट होते हैं. PNS में माइलिनेटेड मोस्ट ऑफ द CNS न्यूरॉन्स होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं, बट PNS जो होता है उसमें मोस्ट ऑफ द CNS में माइलिनेटेड होते हैं, और PNS जो होता है अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उसमें माइलिनेटेड भी मिलते हैं और नॉन माइलिनेटेड भी मिलते हैं, दोनों मिलते हैं, राइट. नाउ जो कंडक्शन होता है, मैंने जो कंडक्शन दिखाया वो था नॉन माइलिनेटेड का, उसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं थी, उसमें ऐसे कंडक्ट होता है. बट व्हाट अबाउट द माइलिनेटेड न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है, उसमें कैसे कंडक्ट होता होगा, लेट्स सी वो कैसे होता होगा. वेट, so this is again
our neuron, our axon, axon of the neuron, and so think of this myelin sheath as bumps actually. Okay, अभी सपोज के यहाँ पे इम्पल्स आया राइट, तो नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, ऐसे था तो इम्पल्स ऐसे ऐसे जा रहा था राइट, ऐसे जा रहा था, ऐसे यहाँ से यहाँ साइड ए से साइड बी, साइड से साइड ए, साइड बी से साइड सी, ऐसे जा रहा था राइट. नाउ अभी यहाँ पे बम्प आ गया, तो अभी क्या करेगा, अभी वो जंप करेगा, इसको जंपिंग कंडक्शन भी बोलते हैं. यहाँ पे आया तो यहाँ से सीधा यहाँ पे, यहाँ से सीधा यहाँ पे, एंड देन एंड. सो दैट इज़ वाई अपनी CNS में क्या होता है, माइलिनेटेड होता है, बिकॉज माइलिन शीथ हेल्प्स. कि माइलिन शीथ क्या है एक्चुअली, माइलिन शीथ वो कंडक्शन नहीं करवाती, वो इंसुलेशन करती है राइट. माइलिन शीथ है वो एज एन इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में से तो कंडक्शन नहीं होगा, तो करंट जो आ रहा है राइट, तो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक करंट के उसमें आ रही है, इन्फॉर्मेशन जो आ रही है, इम्पल्स आ रहा है राइट, वो इंसुलेटर से तो नहीं जाना पसंद करेगा, ऑफकोर्स वो जंप करेगा, इसको जंपिंग कंडक्शन भी बोलते हैं. तो क्या करेगा, दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, दिस इज नॉट गिवन इन NCERT और दिस इज नॉट नीडेड, बट दिस इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली कि माइलिनेटेड में क्या होता है. तो क्या करेगा, जंप करेगा एंड देन जंप करेगा एंड देन जंप करेगा, तो लाइक 2 जंप में तो वो पहुंच जाएगा एक्सॉन टर्मिनल तक, और वहाँ से सीधा नेक्स्ट न्यूरॉन पर चला जाएगा इम्पल्स अपना राइट. सो इट लाइक उसको साइड ए से साइड बी से साइड सी वैसे नहीं जाना पड़ेगा, वो सीधा जंप करेगा. दैट इज़ हाउ माइलिन शीथ हेल्प्स इन. और ये क्या होगा, जंप करेगा, दो बार जंप किया, 3 बार जंप किया, जितनी बार जंप किया, तो ये ऑफकोर्स फास्टर कंडक्शन में हेल्प करेगा. दैट इज़ वाई और CNS जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें मोस्ट ऑफ न्यूरॉन्स है वो माइलिनेटेड है. एंड या ऑफकोर्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है वो कौन सीक्रेट करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. और PNS में माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, उसमें माइलिन शीथ कौन सीक्रेट करता है, उसमें माइलिन शीथ करता है श्वान सेल्स. ये याद रखना है कि श्वान सेल्स कहाँ पे आते हैं और ओलिगोडेंड्रोसाइट कहाँ पे, काम दोनों का सेम है, माइलिन शीथ सीक्रेट करना, बट श्वान सेल्स ओनली इन PNS में अवेलेबल होते हैं और CNS में ओलिगोडेंड्रोसाइट प्रेजेंट होते हैं राइट. सो दिस इज फास्टर कंडक्शन देन इन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन. And that's it, that's all about generation and conduction of nerve impulse. And abhi aap NCERT padhoge to it will be very easy to understand like what the hell is going on with this topic, with this concept, because main problem kahan thi iske assertion reason solve karne mein, like you don't know the concept, आपको कंसेप्ट ठीक से समझ में नहीं आया तो आप सॉल्व कैसे करोगे राइट. सो नाउ it will, I hope it is clear जनरेशन कैसे होता है, कंडक्शन कैसे होता है, एंड लाइक हाउ आई रिपीट, यू रिपीट बाय योरसेल्फ कि कैसे यू रिपीट, कीप रिपीटिंग. इफ़ यू कीप रिपीटिंग द थिंग्स जैसे मैं रिपीट करते जा रही हूँ कि -70 मिलीवोल्ट, -55 + 30 डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, जैसे रिपीट करते जाओ, दिमाग में से बोलते बोलते रिपीट करो, कुछ काम कर रहे हो तो रिपीट करो, रिवाइज करो, रिपीट करो. And that is how you are going to crack any of the competitive exam. That is how you are going to be able to solve any of the questions, any of the assertion reasons. Biology में assertion reasons ही main होता है, and NCERT line to line पढ़नी पड़ती है if you are going to take an competitive exam. Okay, so this is all, and thank you very much for watching this lecture. Thank you, and I hope everything is pretty much clear, and we'll learn with. We learned with the Raftar of rocket, and thank you very much. We'll see you soon next time. Thank you very much.